morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class, that is UGC NET by Mamta Verma. So last class I have already discussed that I have started the British history from starting from beginning to the till today postmodern era तक हम इसको कवर करेंगे. सो लास्ट क्लास में मैंने टू क्लासेस में एंग्लो सेक्शन पीरियड है उसको कवर किया. फर्स्ट क्लास में आई हैव डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड, who was the king, what was the historical events. Okay, in second class I have discussed all the important work which belong to the Anglo-Saxon period. So today I am going to start next Anglo-Norman periods of the British literature. That is very important, and many questions have been asked from this age. So this age is very important for exam point of view. So Anglo-Norman period है that start from the 1066 to 1340. Okay, so who is the king here? Now 1066. So यहाँ Anglo-Norman period that start from the William Normandy या इसको विलियम फर्स्ट भी बोलते हैं. नॉर्मैंडी इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ही बिलोंग्स टू द प्लेस नॉर्मैंडी विच इज इन द फ्रांस. ओके, सो ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड है दैट इज नॉर्मैंडी ये है वो नॉर्मैंडी से ही आया है जैसे ये वर्ड नॉर्मैंडी, क्योंकि ये विलियम था, ही बिलोंग्स टू द फ्रांस, इसलिए इसको नॉर्मैंडी बोला जाता है. ओके, सो नॉर्मैंडी है ये एक प्लेस है फ्रांस में. So how he became the king of England. So there is one fight I have already discussed in last class 1066, that is called the Battle of Hastings. And it's called Battle of Hastings. Okay, और इसको नॉर्मन कॉन्क्विस्ट भी बोल देते हैं, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट. ओके, सो ये बैटल ऑफ हेस्टिंग है दैट इज फॉट बिटवीन द इंग्लैंड किंग हारोल्ड गॉडविंसन एंड फ्रेंच किंग विलियम फर्स्ट, या वी कैन से विलियम नॉर्मैंडी. ओके, so this battle is start 1066 and in this battle the France king है William Normandy, he defeated the England king Harold Godwinson. Okay, so यहाँ in this battle that is William first, okay, defeated Harold Godwinson of England. Okay, and William first became the king of England. So he belongs to the French country. फ्रेंच से आई थी पूरी टीम के साथ इंग्लैंड पे अटैक करने के लिए. Now what happened? क्योंकि हारोल्ड गॉडविंसन, it is not easy for the William first to defeat Harold Godwinson in the battle, because Harold Godwinson, he was a great king as well as great warrior. Okay, he fought many battle in their time. So William first है, he played a trick. उसने जो बैटल हुआ था 1066 में, उसमें एक ट्रिक खेला उसने कि he knows very well that Harold Godwinson is very clever. Then he played a trick. He called a team of archery. आर्चर जो धनुषधारी होते हैं, आर्चर. ओके, सो उसने जो आर्चर की टीम थी उसको बुलाया एंड he called them that you have to shoot the Harold Godwinson when I told you in the battlefield. Okay, now what happened? Harold Godwinson that is covered totally from the protecting shield, helmet. Okay, तो उसने वो सब जो प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे युद्ध में जो कवच वगैरह पहनते हैं, प्रोटेक्टिंग कवच होते हैं जिससे, ठीक है, तो जिससे बॉडी को कुछ भी जैसे बाउंड से बच जाए या कुछ डायरेक्टली जो आर्चर वगैरह या तलवार जो यूज करते हैं तो उनसे बॉडी पे कुछ भी अटैक ना हो, इसके लिए दोनों ही सेना ने कुछ न कुछ, मतलब जो क्वींस होते थे या जो किंग होते थे तो वो युद्ध में कुछ ऐसा पहनते थे. Now William Godwinson he has already weared the kavach, the protecting kavach, shield, helmet on his hand. Okay,
So it was not easy for William first to kill him at that time. Now what he played a trick, he calls the drummer, जो टीम होती है ड्रमर की, जो ड्रम बजाते हैं, ठीक है, उनको बुलाया उन्होंने, एंड दे स्टार्टेड टू बीटिंग द ड्रम, वो जोर जोर से ड्रम बजाने लगे, एंड ऑल द टीम ऑफ द फ्रांस दे स्टार्टेड टू डांसिंग एंड सिंगिंग एंड सेइंग दैट वी हैव किल्ड हारोल्ड गोडविंशन, और वो जोर जोर से ये गाने लग जाते हैं कि हमने हारोल्ड गोडविंशन को मार दिया. Now the team of the England, means the team of Harold Godwinson, when they listens that their king is already died, then they started to leaving the battlefield. वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं. Now when William Godwinson listened that that people next their opposite army is saying that William Godwinson has already died, then he removed his helmet and also his protecting shield. Okay, and he said that look, I'm alive. Okay, and that was a good chance for the army, for the team of the William first, and their team, the archer team, they shoot in his eyes. Okay, and their William Godwinson dies there. So ये उनकी एक ट्रिक थी, क्योंकि विलियम हारोल्ड जो हारोल्ड गोडविंसन था, ही इज ऑल्सो ए ग्रेट किंग, ग्रेट वॉरियर था. वो काफी मतलब काफी लंबे टाइम से वो इंग्लैंड पे राज कर रहा था, ठीक है, उसका किंग था, उसने काफी बैटल है उनको विन किया था, तो ये इसके लिए इजी नहीं था. लेकिन विलियम जो फर्स्ट था, ही वाज आल्सो क्लेवर, और उन्होंने ट्रिक के साथ इस बैटल में विलियम गॉडविंसन को क्या किया था, डिफीट किया था. एंड आफ्टर दिस बैटल, बैटल ऑफ हेस्टिंग, विलियम नॉर्मंडी बिकेम्स द किंग ऑफ इंग्लैंड. सो नॉर्मन पीरियड है, उसमें जो किंग होता है दैट इज विलियम नॉर्मंडी. नाउ क्या होता है कि ये नॉर्मन है, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, तो ये अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लाए. नाउ यहाँ क्या होता है, मीडियल पीरियड में, एंग्लो नॉर्मन पीरियड्स में, पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, दैट इज रिटन स्पोकन बाय द पीपल्स. नाउ यहाँ क्या हुआ, जो लोअर क्लास पीपल थे, जो लोअर मिडिल क्लास पीपल थे, दे यूज टू स्पीक ओल्ड इंग्लिश. नाउ द अरिस्टोक्रेट और जो अपर क्लास पीपल थे, दे यूज टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, एंड फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, इंस्टीट्यूशंस, ओके, लॉ. सो ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी उस टाइम में, फ्रेंच लैंग्वेज. सो एग्जाम में एक बार नेट में क्वेश्चन आया था कि मिडिल लैंग्वेज है, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज, मिडल इंग्लिश लैंग्वेज इज ओरिजिन फ्रॉम, सो इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन और फ्रेंच, ओके, लैटिन और फ्रेंच दोनों से है इसका ओरिजिन. ये एक बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द मिडल इंग्लिश. तो इसका लैटिन था, क्योंकि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो लैटिन लैंग्वेज थी वो थी, उसको मिडल इंग्लिश भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ लैटिन दे रखा था, लैटिन और फ्रेंच, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो मिडल इंग्लिश है वो, ठीक है. सो नाउ हिस्टोरी, जो लिटरेरी पीरियड थे इसमें, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड था, इसमें लिटरेरी पीरियड क्या था, मतलब लिटरेचर कैसी थी, क्या जॉनर्स था यहाँ. तो जेनर्स की बात करें यहाँ, तो जो मोस्ट डोमिनेटेड जेनर था वो रोमांस था. रोमांस मतलब लिटरेचर का स्टाइल क्या था, ये जो नॉर्मन पीपल्स थे, दे फेच द रोमांस, ओके, रोमांटिक टेल्स ऑफ द हीरो एंड देयर एडवेंचर, ये सब इनकी स्टोरीज होती थी ना, इनमें जो रोमांस होता था वो भरपूर होता था उनकी पोएट्रीज में. स्पेशली जो रोमांस होता था, वो जो हीरो होता था, उनका एडवेंचर, उनके बैटलफील्ड या उसकी जो पर्सनल लाइफ थी, ठीक है, उनसे रिलेटेड होता था. तो यहाँ सिवेलरिक रोमांस बोल सकते हैं या रोमांस, और ऑक्टोसिलेबिक कप्लेट में लिखा जाता था मोस्टली, ऑक्टोसिलेबिक कप्लेट, ओके, जो पोएट्री लिखी जाती थी वो इस सिलेबस, इस मीटर में लिखी जाती थी, ऑक्टोसिलेबिक मीटर. तो ये था मेन जो हिस्ट्री थी. यहाँ मेन 2 जो इंस्टीट्यूट थे, दैट वाज वेरी यू नो ओल्ड इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज, ओके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
both was established in this period. So जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है that was established in 1096 and Cambridge University was established in 1209. Okay, so that is very very important. Okay, you have to remind it, they can ask in the net. So that was the these are the most oldest university in London that was established in England during the Anglo-Norman period. Okay, so that was the history of Anglo-Norman period. इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. That is enough for exam point of view. सिर्फ आपको याद रखना है that is time period is very very important. क्योंकि एग्जाम में हमेशा किसी भी पीरियड का टाइम, एक क्वेश्चन हमेशा टाइम पीरियड से आता है, तो आपको सबसे पहले एंग्लो नॉर्मन पीरियड का टाइम याद रखना है. दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1060 टू 1340. ओके, सो इसमें जो किंग थे वो विलियम नॉर्मंडी थे जो कि फ्रेंच से बिलोंग करते थे. ठीक है, यहाँ जो नॉर्मंडी जो किंग बने थे वो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स थे, या बैटल, इसको नॉर्मन कॉन्क्विस्ट बोल सकते हो आप. ठीक है, सो इस बैटल के बाद वो इंग्लैंड के किंग बने थे. ठीक है, तो यहाँ मेनली जो जर्न था, इसमें रोमांस था, जो पोइट्री लिखी जाती थी वो ऑक्टो सिलेबिक कपलेट में लिखी जाती थी. और यहाँ जो 2 यूनिवर्सिटी है उसका भी एस्टेब्लिश्ड, वो भी फाउंडेड हुई थी इस एज में. ठीक है, तो यहाँ से जो एजुकेशन थी, इंग्लैंड बिकेम्स द मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल हब उस टाइम में. ठीक है, सो यहाँ ये था इतना हिस्ट्री. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है इससे रिलेटेड, उसको कवर करेंगे.